I think shall we start? Yeah, we are good to start. All right. Okay. Good. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Thankful Thursday, a weekly webinar where we help you to grow yourself. For those who are joining for the first time or those who do not know me, my name is Kaleem Syed and I am a leadership trainer and a life coach. I am a founder of Clan Win, where we do help the people to grow themselves. And we do sessions every Thursday in a sort of webinars and at the same time training and coaching, etc. But this what we are doing right now is a webinar. Last week we have done a session on Ikigai, and this week is the continuation, or let us say part two of the same webinar what we have done last week. Before I start, just a quick go through of what we have gone through last week. We will not make this session interactive. However, if you have got any questions, please put it on a chat box. Quick recap of what we have learned yesterday. Ikigai is a Japanese concept of living a life and finding a worth of life. Um, there are two different words in this, iki and gai. Now, when I say iki means it's life, and gai is worth or value. Now, iki, life, means which starts from B and ends at D, in which means birth से शुरू हुई है और डेथ पे खत्म हुई है जिंदगी. इन दोनों के दरमियान में सी जो आपको मिला है, that is choice, and with the choice Allah subhanahu wa ta'ala says that you can make your life the best. Okay, and or else you can make your life asfal as-safilin, यानी बेहतरी सबसे खराब. अल्लाह ताला ने हमको अहसन खालिकीन अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है. अगर हम अहसनी तकवीन, अगर आप अच्छा काम करें विद अ चॉइस, और असफल साफिलीन अगर आप खराब काम किए with that same choice. So life is between B and D, and the choice which has been given to Allah subhanahu wa ta'ala to make our life more better, that is Iki. I'll go a little bit faster because we have already done a session on this. Now second one is Gai. Gai means in Japanese, the Gai means worth, or let us say value. Mark Twain has said a very well statement. He said that there are two important days in your life. First one is the day which when you born, and the second one is the day when you know why you have been born. Now, if you see everything in this life, there is a reason for it. दुनिया में हर चीज का वजूद किसी बुनियाद पर होता है. अगर वो मकसद नहीं है, अगर वो बुनियाद नहीं है, तो फिर वो वजूद का कोई फायदा नहीं है. जिंदगी में आप जितनी सारी चीजें अपने साथ रखते हैं, उसके पीछे एक मकसद होता है. Why you kept the thing there? If the why is not being clear, okay, you will not keep the things there. एक अच्छी बुक भी है, start with why. You might have you go through on the internet. So Iki is life, Gai is worth or the value. So with this Japanese concept, we will find out that what is a life and what is the worth of life, and in Islamic perspective, what Allah subhanahu wa ta'ala says a life is all about, and how we can make this life better. So jumping on to the next slide, this is what it is. Iki is life and Gai is worth. Now in this, there are four different areas. First one is what you love. Second is what you're good at. Third, what you will be paid for. And fourth one is what the world needs. Now, what you love are the skills or the things. We'll learn this more details in practical today, as we have discussed a theoretical part in the last webinar. So these four areas are very important for you in order to find a true worth of your life. अगर हम बच्चे के लिए कैरियर काउंसलिंग वगैरह वगैरह अगर हम सोच रहे हैं, तो कोई कैरियर काउंसलर या जो है ना कोई मुश्किल चीज ना करते हुए, अगर ये ही इकिगाई अगर आप समझ लें, ठीक है, नॉट ओनली योर्स but your kids and everybody's life would be wonderful. Now, four areas: what you're good at,
what you're sorry, what you love, what you're good at, what the world needs, and whether you get paid for this or not. These are the four areas of ikigai. Now moving further, what you love, okay, and what you're good at, ये दो डिफरेंट एरियाज है। ये दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे, दैट बिकम्स योर पैशन। आई रिपीट, व्हाट यू लव, ओके, एंड व्हाट यू आर गुड एट, ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे, दैट बिकम्स योर पैशन। नाउ सेकेंड वन, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इफ यू मेक दिस टू टुगेदर, दैट बिकम्स योर प्रोफेशन। Third, what you're good at and what the world needs. If you make these two together, that becomes your mission. And finally, what the world needs and what you're getting paid for, that becomes your vocation. यानी आप जो चीज चाहते हैं और उसके साथ साथ आप उसमें अच्छे हैं। देखो, चाहत तो काफी सारी चीजें होती है, ठीक है, मगर आप उसमें अच्छे हैं क्या? अगर ये दो चीजों को मिला दें, तो दैट बिकम्स योर पैशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट ऑन इन आवर प्रीवियस webinar. I'm just giving a glimpse of it. That is why I'm going a bit faster. Now, second one is what you're good at and what the world can pay you. That becomes your profession. ठीक है, आप आईटी या कोई भी एक सेक्टर में अच्छे हैं और जिसके आपको पैसे मिलते हैं, दैट बिकम्स योर प्रोफेशन। नाउ व्हाट यू लव अगेन एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दैट बिकम मिशन। ठीक है, अब वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, या जिंदगी का कोई एक मिशन, एक मकसद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट बिकम्स योर मिशन। एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट यू गेट पेड इज, वो आपका वोकेशन हो जाएगा। यानी बेहतरीन, आपको आपको पैसे भी मिल रहे हैं उसके लिए और दुनिया को उस चीज की जरूरत भी है, दैट बिकम्स योर वोकेशन। Till here, we have discussed in the last week ikigai and what are the main concepts। चार मेन कॉन्सेप्ट्स है, फिर उसके बाद उसमें सब कॉन्सेप्ट है, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन। ये चार सब कॉन्सेप्ट्स है। Now, how we can implement this in our daily life, that is what we are going to talk about in this webinar of today. And then what we are going to discuss is absolutely practical, not being just a theoretical। अगर अब मैं चंद सेकंड आपको दूं या एक मिनट अगर आपको दूं, कुछ सवाल है तो पूछ लें, और मेक श्योर दैट यू गेट योर पेन एंड पेपर रेडी, बिकॉज ऑल अवर वेबिनार्स, ओके, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल, इंटरैक्टिव, प्रैक्टिकल। होता दरअसल ये है कि हम सुन सुन के सुन हो गए हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें, जुमे के खुतबे, बयानात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड हैव सीन मेनी ए पीपल जो कान में लगाकर फिर अपना काम करते हुए, फिर बाद में ये सुनेंगे कि 1 घंटे का सेशन सुना है मैंने, सर ने अच्छा बताया, but you didn't do it practically. So what we really want you to do is take a pen and paper, okay, sit and do it then and there. That अब फिर बाद में अगर आप करेंगे ना, टालने, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप करेंगे, तो फिर वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होगा। तो मैं चंद यानी मैक्सिमम आई गिव यू 1 मिनट इन ऑर्डर, इफ यू कैन गेट योर पेन एंड पेपर। अगर इस दरमियान में अगर कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर we will jump onto it. Just 1 minute to get the pen and paper. If you have got any question, let me know on the chat box. Ikigai, what does it means? Any explanation needed, required? Let me know. Or you can unmute and ask as well in the meantime. Okay, no questions. Let us quickly jump on to the first area. What we love.
What we love is Ikigai's first area. Now, please write it down. What things when you do, you are the most happiest? Quickly. ऐसे कौन से काम हैं जिसे करने में आपको खुशी मिलती है? Maybe drawing, maybe speaking, okay, or maybe coding, or maybe serving people, etc., etc. और ऐसे काम जिसमें आप पैशनेट होके करते हैं, बिल्कुल। यानी when you say passionate, that means आप you are out of time and space. That work is your passion, I would say. ऐसा काम जो आपको थकाए ना, वो लिखें। ऐसा काम जिसमें आप मुआवजा यानी व्हाट यू गेट पेड फॉर, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। ऐसा काम जिससे आपको लोग जानने लगे, ठीक है। ऐसा काम जो आपको यानी व्हेन यू सिट एंड डू दैट वर्क, ओके, यू आर आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस। आप करते करते बाद में पता चला आपको कि 2 घंटे लग गए और आप एक ही काम कर रहे हैं। प्लीज राइट इट डाउन, व्हाट यू लव, things that you love, things that you are passionate for. And you're not worried about time, okay, you're not worried about where you're sitting, you don't have to prepare for that, etc., etc. What would you love to do even if you are so busy? What are the things which will not make you tired? ऐसे काम जो आपको एंथुसियास्टिकली करते हैं, आप इंतजार करते रहते हैं कि हाँ ये काम, ये वक्त मिला तो मैं ये फौरी काम करूंगा या करूंगी। अगर कुछ सवाल है इसमें तो क्विकली पूछें, नहीं तो फिर वी विल जस्ट क्विकली जंप ऑन। फर्स्ट एरिया इज व्हाट यू लव, व्हाट यू लव टू डू इन योर लाइफ। इकिगाई, finding the real value, real meaning of your life. Okay, if that is being done, okay, make sure that when you do that, you go on a state called flow. Last session में मैंने समझाया था, that means आप वो करते करते इतना perfect हो गए कि that you don't have to go back and look and do that work again. What you love. अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला भी इस्लाम में काफ़ी सारी चीज़ों को लव पे या मोहब्बत पे ज़्यादा तरजीह दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुब्बुल्लाह, हुब्बे रसूल, हुब्बे उम्मा, ठीक है, हुब्बे तरबिया, ठीक है, हुब्बे वतन। आज जो हैदराबाद में है वो लोग वोट भी डाले होंगे, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द हुब ऑफ दैट मीन्स लव ऑफ द कंट्री। ओके, सेम what you love, hubbe learning, hubbe tarbiya is one of the important factor of Islam, ठीक है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो करिए। हाँ, अब इसमें मेक श्योर आपको ये करना है that doesn't goes beyond the boundaries of Islam, okay, that doesn't go beyond the boundaries of Islamic teaching. What you love, do it, but everything has to be in jurisdiction of Islam. Whatever you do, okay, with a niya, that you will be getting reward. For example, सबसे बेहतरीन आसान अगर मैं बोलूं कि why we human beings are being born in this world, why we are here, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने इंसान और जिन को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। यानी अगर 24 hours if I am saying that इबादा, then how can I do the worldly affairs? So इसका सिंपल आंसर ये है, हर वो काम जो आप ये नीयत से करते हैं कि ये मुझे अल्लाह के करीब पहुंचाएगा, इससे मैं जो है ना कुछ यानी सवाब मिलेगा, अगर ये आपकी नीयत है तो दैट बिकम्स योर इबादा। इसी नीयत से अगर आप ये वेबिनार भी अटेंड कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ये भी आपकी इबादत हो जाएगी कि आप यहाँ से कुछ अच्छा सीखें और फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। So the first thing is what you love in your kids, in your profession, in your family, in your friends, in your relatives, NGOs, etc., etc.
कहीं पर भी देखें, आप ये लोगों को बताएं कि जो है ना, आप वो काम करें जो आपको पसंद है, जिससे आपको मोहब्बत है, जो काम आपको थकाता नहीं, जिस काम के लिए आप जाने जाते हैं, जिस जो काम करते हुए आप टाइम एंड स्पेस से आगे चले जाएं। अगर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, ओके, आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, with all due respect I'm saying, if you do not do this exercise and just listen or watch to my webinar, this is not going to be helpful. Why? Because we have been listening, हम सुन सुन के, जैसा मैंने कहा ना, सुन हो गए. Now it is the time for action, and the best thing is 2024 is just around the corner. So it is the best time for you to monitor your progress. Take pen and paper and write it down immediately. What are the things that you love, and start doing it, and how you can do it, I will explain you in further. So first thing is that आप क्या चीज पसंद करते हैं वो आप लिखें. अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि आप जो चीज पसंद करते हैं उसके लिए टाइम नहीं मिलता, या आप करना नहीं चाहते, या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर ये आप करेंगे ना, तो what will happen is that will keep on, taunting, keep on hinting, आपके दिल और दिमाग पे आपको एक बेचैनी रहेगी. अरे यार, मैं जो है ना करना चाहता था. वो बेहतरीन चीज ऐसी होती ना कि आप कोई एक चीज के लिए बनाए गए हैं, दैट यू लव टू डू इट, मगर ना करने की सूरत में आपको जो है ना, कीप ऑन, दैट इज हॉन्टिंग यू. अब वो कहते हैं ना, एक एक बेहतरीन रविंद्रनाथ टैगोर का एक अच्छा सा लाइन है. वो कहा कि स्प्रिंग इज पास, समर इज गॉन, एंड विंटर इज हियर. All the song which was there in my heart couldn't sing, because all the time I was stringing and unstringing my instrument. That means गर्मी चली गई, ठीक है, बारिश अभी खत्म हुई, अभी सर्दी आने को है. जो मैं चाह रहा था करने के लिए, मगर वो मैं नहीं किया. मैं क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ऑल द टाइम आई वाज स्ट्रिंगिंग, मैं अपना जो गिटार है उसी को ठीक करने लगा. मैं जो गाना गाना चाह रहा था नहीं गाया, क्योंकि मैं बस ऑल द टाइम मैं गिटार ठीक कर रहा था. अब ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो चाहते हैं, ये टाइम ठीक नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक से करूंगा, 1 जनवरी से करूंगा, जुमा से करूंगा, एक्सेट्रा, मंडे से करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स दैट यू डू. ओके, एंड that can stop you from becoming who you are. Somebody has written, praying 5 times a day, that is इबादा. वो तो आपको फर्ज है, वो तो करना ही है, ठीक है. That is not an excuse. What we are talking about is a life that you can make worthful. ठीक है, जिंदगी ऐसी जीना है जो आपके बाद आपके आने वाली नस्ल भी याद रखें. That is the life of worthiness. ठीक है, ये जापानीज जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी टाइम पुराना है. ये लोग इतना इंप्लीमेंट किए कि आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. 5 टाइम की नमाज, दैट इज फर्स्ट, दैट इज यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट. हम जो बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा टैलेंट है, ऐसा कौन सी स्किल है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप अब तक नहीं करे हैं, जो आपके अंदर है और आप करे नहीं है. बच्चों की पढ़ाई के बात करूंगा या करूंगी, ठीक है, थोड़ा ऑफिस के बात करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो राइट दैट डाउन. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट यू आर गुड एट. देखिए वो तबलीग, ओके, दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग. द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट यू आर गुड एट. टैलेंट जो होता है ना हर किसी में, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हिडन. जॉन मैक्सवेल सेड दैट अगर आप छोटे बच्चों को, ठीक है, एक ग्रुप में छोड़ दें, और विद इन 5 to 10 minutes यू विल अंडरस्टैंड हु इज लीडिंग द ग्रुप. सो टैलेंट जो है वो आपका छुपता नहीं है, वो खामोश नहीं बैठता, वो कहीं ना कहीं से उठ के आता. सो व्हाट यू आर गुड एट, यू हैव टू फाइंड आउट. बेहतरीन जिंदगी जीने का तरीका, एक बेहतरीन तरीका, ये चीज ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस में अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल मी, आई थिंक एंड आई बिलीव स्ट्रांगली दैट आई एम ए गुड स्पीकर. सो आप किस चीज में अच्छे हैं वो फौरी तरीके से लिख लें. आपका टैलेंट किस में है, ठीक है, वो फौरी तरीके. देखिए, एक तो होती है चाह. अब मेरी चाह है प्लेन चलाना,
अगर अगर कोई ऐसा कहता है कि आई लव फ्लाइंग एन एरोप्लेन और अ फाइटर जेट, ओके, द सेकंड क्वेश्चन दैट नलिफाइज द फर्स्ट वन इज, एम आई गुड एट दैट? क्या मैं रियली चला सकता हूं? नहीं, मैं नहीं चला सकता। अगर नहीं चला सकते तो देन चेंज द फर्स्ट आंसर। Okay, what you love. For example, I want to become a doctor. At this point of time, can I become a doctor? No, I cannot become a doctor. Then you have to change the first thing. So the first one is what you love. Second one is, are you good at that? ठीक है, आप जो चीज पसंद करते हैं, आर यू गुड एंड दैट? अगर आपके पास वो टैलेंट है ना, तो वो खामोश नहीं बैठता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक आसान तरीके में, अगर आप शरारती बच्चे को देखें, एंड इफ यू क्लोज हिम इन वन रूम विदाउट हैविंग एनीवन, वो कमरे में कोई भी नहीं है, फिर भी आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? अरे भाई, बच्चा कुछ तो करूंगा, बिकॉज शरारत है उसके इन नेचर। अगर इन नेचर में आपकी शरारत है ना, देन दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। नाउ द सेम थिंग is being taught in Islam. For example, अगर आप ये देखें कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकले थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुछ करने के लिए। जैसे ही वहां पे दारुल अरकम पहुंचते हैं, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और ईमान लाते हैं, और व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही सेज? वो बोलते हैं कि "ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पे नहीं है? जब हम हक पे हैं तो फिर क्यों छुप के करना?" That was his inbuilt talent. That was his good in, bravery. जो कोई भी चीज है, खुल के करें, आराम से करें, नो छुपा छुपी। तो दैट इज व्हाट इट इज, व्हाट यू आर गुड एट। उसी टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल के मक्का पहुंच गए, और रास्ते में ऐलान किया गया है कोई अगर अपनी बच्चों को यतीम करना चाह रहे हैं, आइए आगे। तो दैट वाज हिज टैलेंट, दैट इज व्हाट ही वाज गुड एट। तो आप किस चीज में गुड है, वो आप प्लीज लिखिए। ठीक है, अब ये गुडनेस जो पहचाने जाती है, ठीक है, आपके काम से पहचाने जाती है, लोग आपको आके उस चीज के बारे में पूछते हैं। ठीक है, आप वो काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगेन, राइट इट डाउन व्हाट यू आर गुड एट। पहला, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, क्या चीज आपको पसंद है। दूसरी चीज, क्या आप उसमें अच्छे हैं, क्या आप उस वो सॉरी, आई थिंक, क्या आप उसमें अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। Okay, anything that you're good at in your childhood, anything that people recognize you, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती, कोई चीज पूछना होता, तो आपके पास आके पूछते हैं what you are good at. Any specific challenges, anything which you have faced and which you have easily come out of it. अरे इस तरह के challenges, I will easily come out of it. Okay, anything that you can go in the past and find out that this is the area where I am good at. So please write it down what you are good at. अंदर का जो टैलेंट है ना, वो खामोश नहीं बैठता, उसको जो है ना, देखिए, एक बेहतरीन वाकया है। एक राजा ने अपने सारे मिनिस्टर्स को एक साथ बुलाया था खाने पे। तो जैसे ही वो लोग आए, खाने पे बैठे और खाना खा रहे थे, खाना खत्म होने के बाद ओमानी हलवा आता है इधर, मीन्स वो उधर थोड़ा स्टिकी रहता और जेली टाइप रहता। तो सारे लोग उस टाइम पर जो भी उनके पास था, चम्मच वगैरह, उससे खा रहे थे। तो एक बंदे ने अपना चाकू निकाला और चाकू से काट कर खा रहा। राजा ने कहा कि फौरी से पकड़ो। और जैसे ही उसने कहा कि पकड़ो, और वो भाग गया वहां से। तो सिपाही काफी सारा ढूंढ ढांड के आए, आके बोले कि वी कुडंट एबल टू कॉट हिम, और उसकी क्या गलती थी जो आपने कहा कि उसको पकड़ो। तो राजा ने कहा कि उसका टैलेंट, उसका जो स्किल, उसकी जो ऑनर थी ना, जो चाकू से निकाल के वो मीठा खा रहा था, वो बता रहा था कि जरूर बादशाह बनेगा, एंड दैट 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 इज अ थ्रेट फॉर मी। सो दैट इज व्हाट ही वाज गुड एट। जो आपका टैलेंट है, वो आप निकालिए, आप देखिए, आप सोचिए। ठीक है, और उसको जो है ना, बेहतर करने की कोशिश करिए। अगर आप लिख चुके हैं, दैट इज एब्सोल्युटली गुड। अगर नहीं लिखे, तो फौरी लिखिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स।
अब आज के टाइम पे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वह है हौसला, वो है हिम्मत। ठीक है, वो है एक भरोसा, वो है एक बड़े लोगों की शाबाशी कि भाई तुम कर सकते हो, तुम में वो टैलेंट है, तुम में वो स्किल है, एंड यू कैन गो फॉरवर्ड। एंड नाउ इन दिस टुडेज वर्ल्ड वेर कट थ्रॉट कंपटीशन है, इतना भयंकर कंपटीशन है कि दोस्त दोस्त का नहीं, भाई भाई का नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन दिस कट थ्रॉट कंपटीशन व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, देयर आर मेनी थिंग्स द वर्ल्ड नीड्स: artificial intelligence, machine learning, data science, robotics, etc etc, these are all the world needs। तो सबसे ज्यादा मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा जो इजी इंपॉर्टेंट और सबकी नीड है, वो है हिम्मत देना, एक दूसरे को हौसला देना कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। हर चीज पे आज की हमारी चीजें देखिए, आप नेगेटिव, यू नो, whenever you talk something, you want to attend a webinar on Thursday, उससे क्या होगा? वो ऐसे तो बहुत लोगों को सुन लिए, ऐसे तो बहुत चीजें कर लिए, ये होता नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द टाइम नेगेटिव खींचते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। लेस ब्राउन ने बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया इसके लिए, OQP, ओनली क्वालिटी पीपल। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि अगर आप बुरे लोगों की सोबत में रहेंगे, आप भी बुरे हो जाएंगे। तो एक दफा एक सहाबी वो तौरात इंजिल की महफिल में बैठे थे, या जो है ना उनके दोस्त यहूदी और नसरानी थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी जाहिर की, तो वो सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनकी बात सुने और हम हमारी बात पहुंचाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि when you are surrounded with so many people and you are only alone, there are high chances that you will get involved in that evil practices। ठीक है, अवे फ्रॉम दैट। सो OQP, ओनली क्वालिटी पीपल आपके साथ रखें, और ये देखें आपकी फील्ड में व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। ठीक है, आपकी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि आप जो चाहें, व्हाट यू लव, दैट इज क्लियर। ओके, एंड सेकेंडली, ओके, व्हाट यू आर गुड एट। ओके, thirdly, whether what the world needs। ठीक है, आज की दुनिया में जो है ना, क्या चीज की जरूरत है? इनोवेटिव सॉल्यूशंस है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे तीन चार चीजें ऐसे सोचें जो आपकी फील्ड से है, जिसमें आप अच्छे हैं और जिसको आप पसंद करते हैं। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस आफ्टर दिस point, we can ask and have some interactive webinar now। what the world needs, ये आप अपने उसमें लिखें कि दुनिया को क्या बेहतर चाहिए। क्विकली, what you can be benefited for, आप ऐसी कौन सी चीज है जो जब आप करेंगे, ठीक है, तो दुनिया आपको जाने जाएगी और दुनिया को उस चीज की जरूरत है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, ओके, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। Okay, it is the business class which has been empty, it is economic class which has been full। ठीक है, what the world needs, that is the most important thing that you have to see in your field। जो आप चाहते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, क्या दुनिया को उसकी जरूरत है? ठीक है, अगर है तो किस मायने में जरूरत है, आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं? that is the third point। if you would have written, that is good। Okay, and lastly, whether the world can be paid for this or not। जो आप काम करेंगे, दुनिया इसको पैसे देगी या ना देगी। सच मानो या गलत मानो, समझो या ना समझो, बट दुनिया की हकीकत यही है कि हर किसी को पैसा चाहिए आज के दौर में। अगर पैसा नहीं है, दैट मीन्स यू आर इन डीप ट्रबल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपनी आल औलाद को गुर्बत में ना छोड़ के जाओ, क्योंकि गुर्बत आपको कुफ्र तक ले जाती है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज अराउंड मनी, एंड सी टू इट दैट यू कैन बी पेड विद दिस और नॉट। Quickly write down that whatever you love it, whatever you are good at, whether the world needs it, and finally whether you can be paid for or not।
Okay, because most of the problem today, I would say 90% of the problems can be solved by money. So if you're not getting paid for that, then it would be a bigger questions to ask. Okay, आज के टाइम पर रिमोट लर्निंग, रिमोट टीचिंग, रिमोट jobs, and remote selling, remote buying, etc., etc. There are a lot of things. So those who are sitting at home, okay, those who are doing some job and in the part time, they can do lot of things. हमको जो चीज रोकती है वो सिर्फ हमारा ईगो है, और दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि सेल्फ पिटी है. We think that this is not the right time, we do not have right resources, etc., etc. The best thing is jump from the cliff and develop your wings on the way to ground. पहाड़ से आप कूद जाएं और रास्ते में आते आते अपनी परें बनाएं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. देन ही स्टार्टेड द दावा. जो कुछ भी मयस्सर है, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर फार मोर बेटर देन द अदर पीपल. सो सी टू इट, whatever you are doing, whether the world can pay you for that or not. If it is yes, then quickly jump onto it and start doing the work now. अभी ये चार चीजें जब आप लिख लिए, अब आप बड़ा नहीं सोचे, ज्यादा बिग नहीं सोचे. सिंपल छोटे स्टेप्स ऐसे कौन से होंगे जिससे आप आज ही से, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुमारो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे आफ्टर टुमारो और फर्स्ट और जनवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट आर द थिंग्स that you can do it starting from today? Micro, mini, small steps that you can do in order for you to find your life worthy लिविंग. ठीक है, शायद आप प्रोफेशन में अच्छे होंगे, ठीक है, आपका मिशन अच्छा होगा, अगर वो पेड नहीं है तो परेशानी है. आप प्रोफेशन में अच्छे होंगे, अगर आप चाहते नहीं है, इफ यू डू नॉट लव दैट, देन इट इज अ क्वेश्चन मार्क. आप चाहते भी हैं आपके प्रोफेशन में, आपको लव भी है वो प्रोफेशन में, मगर आपकी सैलरी या इनकम कम है, देन अगेन इट इज अ क्वेश्चन मार्क. यू लव द व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गुड एट दैट. ओके, द वर्ल्ड, इफ द वर्ल्ड डजंट नीड इट, okay, sooner or later you will be obsolete. AI का हमने बेहतरीन सेशन किया था कि there are a lot of jobs that is been removed just because of AI. So ये चार चीजों को देखें, what you love, what you are good at, what the world needs, whether you are getting paid for that or not. ये चार चीजों को देखें और इस पर अपनी क्विकली पॉइंट्स लिखें कि हम मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं. अब इसके पीछे रुकावटें अगर आप देखें तो लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स हैं. द सेम थिंग इज बीन टॉट इस्लाम एज वेल. ये चार चीजें बिल्कुल कोई अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि ये जापानियों ने पहले देखा और बुक लिख दिया, और हमने जानकर भी मैं समझता हूं कि जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, और वी डिडंट फाइंड इट वर्थ ऑफ डूइंग इट. अब जितने सारे हमको एक रेस में लगा दिया गया है, ये करो उसके बाद ये करो उसके बाद ये करो उसके बाद ऐसा, तो उसमें हम हमारी वर्थ नहीं फाइंड आउट कर सके. हम जिंदगी तो जी लिए, बट एट द एंड में वी डिड नॉट फाइंड द वर्थ. मैं कई सारे लोगों को कोचिंग करता हूं जहां पे वो देखा कि काफी पैसा है, बट विदाउट रेस्ट, विदाउट विदाउट स्लीपिंग पिल दे कैन नॉट स्लीप. मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास काफी पैसा है, but relationship they are badly suffering. Their wife is not listening, their kid is not listening, their husband is not listening, etc., etc. और not only this, ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कैरियर अच्छा है, but all the time fearing कि भाई मैं मेरी जॉब चली जाएगी, मुश्किल होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं कि हेल्थ की इश्यूज इतने ज्यादा हो गए कि जितना पैसे कमा रहे पूरे हेल्थ में जा रहे, या फिर पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं. This is one of the issue. So make sure that you go through with this all four areas and write it down. शायद थोड़ा होगा मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है, बट अच्छा होगा, ठीक है, मगर ज्यादा होने के साथ साथ अगर परेशानी आई, ठीक है, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. ठीक है, वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, लाइफ स्पैन बहुत छोटी हो गई है.
क्विक डेथ्स आप लोग देख रहे हैं, कोरोना आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स वी फॉरगॉट इट एब्सोल्युटली, कि हम वो वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज। ठीक है। तो इन सिंपल, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फाइंड योर लाइफ्स वर्थ मीनिंग। आप ये देखें कि मेरी जिंदगी का जीने का मकसद क्या है। अगर सेम वही है, उठना, जॉब करना, बिजनेस करना, कमाना, ज्यादा पैसे कमाना, घर बड़ा बड़ा है तो और बड़ा बड़ा, गाड़ी बड़ी है तो और बड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, देन वही रेस में हमसे पहले भी कई आए और कई चले गए, हमारे बाद भी कई आएंगे और कई चले जाएंगे। फिर हम जाते वक्त जो है ना, हम ये नहीं समझेंगे कि यार मैं कुछ नहीं कर सका। एक छोटी सी कहानी बोल के बात अपनी खत्म करता हूँ। एक 90 साल का बूढ़ा आदमी यानी बिस्तर पे लेटा था और उसकी रूह कब्ज होने वाली थी, इट्स टाइम ऑफ डेथ। किसी ने कहा कि जो है ना कलमा शहादा पढ़ो। उसने उसने कहा कि ऐ काश, हाउ आई विश। लोगों ने कहा कि यार पूरी जिंदगी तुमने जी ली, अभी काश का मतलब क्या है, व्हाट एल्स दैट इज लेफ्ट इन योर लाइफ। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा ये जिंदगी बदलेगा। मैं स्कूल को गया, प्रिंसिपल ने पूछा क्या करोगे बड़े होके, कहा कि जो ना मैं जिंदगी बदलूंगा, मैं दुनिया बदलूंगा। तो प्रिंसिपल ने कहा दुनिया बहुत बड़ी है, तुम नहीं बदल सकते। फिर मैं कॉलेज में गया, मैंने कहा कि जो है ना, प्रिंसिपल ने पूछा, मैंने कहा कि मैं देश बदलूंगा, बोले देश बहुत बदला बड़ा है, नहीं बदल सकते। फिर मैं जो है ना यूनिवर्सिटी गया, वहां पे कहा कि मैं अपना मोहल्ला बदलूंगा, नहीं हुआ। फिर जॉब पे गया, जॉब ने बॉस ने कहा कि जॉब पे फोकस करो। फिर मेरी शादी हुई, मैंने कहा कि मैं दुनिया बदलने निकला था, दुनिया तो नहीं बदला, मैं शायद इस वाइफ को बदलूंगा, तो यू नो द आंसर, तो वाइफ नहीं बदली। फिर उसके बाद उसको बच्चा हुआ, तो उसने कहा कि मैं दुनिया बदलने से शुरू किया था, कुछ नहीं बदला, ये मेरी औलाद है, मैं इसको बदलूंगा। तो बच्चा आफ्टर बच्चा, 7 बच्चा हो गया और 90 साल की उम्र गुजर गई, अब डेथ बेड पे है। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी मैं दूसरों को बदलने के चक्कर में गया, ऐ काश मैं अपने आप को बदलता तो शायद जिंदगी बदल जाती। वॉरेन डेर ने कहा कि इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक चेंज। सो आज से बराए मेहरबानी इकिगाई को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, अपनी जिंदगी का मकसद मीनिंग जानिए। इस्लाम में खुली तरीके से लिखा गया है कि मेरी जिंदगी का मकसद ये तेरे दीन की सरबुलंदी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान को बनाया है सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत के लिए। हर वो काम जो अच्छा से करते हैं, दैट बिकम्स योर इबादत। अपना ट्रू पोटेंशियल जानिए थ्रू दिस इकिगाई, और ये कल नहीं आज ही करिए। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप पे जुल्म कर रहे। एक एक कोई हर चीज का एक पर्पस होता है, अगर वो पर्पस उसके लिए फुलफिल ना हो तो फिर दैट इज नॉट वर्थ लिविंग, और दैट इज नॉट वर्थ कीपिंग। ये एसी का रिमोट है जिससे मैं एसी खोल और बंद कर सकता हूँ। मैं हर वो काम कर रहा हूँ ये एसी के रिमोट से, मगर एसी खोल और बंद नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स फिर ये एसी का रिमोट वर्थ नहीं है। आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन टैलेंट दिया है। आप ऐसा काम जो आप चाहते हैं वो आज से फोकस करें, दुनिया को देखें क्या उसकी जरूरत है, और आपको पैसे मिल सकते हैं इमीडिएटली। थोड़ा सा शुरू करें, इंशाल्लाह आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और आपकी वर्थ लिविंग रहेगी लाइफ। और जब आप दुनिया से जाते रहेंगे, आपको भी ये लगेगा कि हाँ यार, दुनिया में आया हूं तो कुछ अच्छा करके गया हूं। वरना ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए। विल गिव 5 more minutes फॉर एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स इफ यू हैव गॉट, और एल्स वी विल एंड अप दिस सेशन। लास्टली, प्लीज 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 राइट इट डाउन। सुन के मत चले जाइए, प्लीज राइट इट डाउन एंड इम्प्लीमेंट दिस। Any questions you can ask on the chat box, or you can unmute yourself and ask. Ikigai is the topic through Islamic perspective, the areas of life.
Please do not stop yourself with some sort of excuses or procrastination. If there are no questions, we'll wait for one more minute and we will end up this session. There are more lot of things which has been said in this book. For example, जैसा मैं फ्लो की बात किया, लोगोथेरेपी की बात किया था, ठीक है, अच्छी डाइट की बात किया था, स्लीपिंग पैटर्न्स की बात किया था, ठीक है, फिर वाबी साबी एक एक कॉन्सेप्ट है ये बुक में, उसकी बात किया। वाबी साबी इन द सेंस हर वो चीज, ठीक है, हम टूटी हुई इनकम्प्लीट देखते हैं तो उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। यानी आपकी जिंदगी में काफी सारी अच्छी चीजें हैं, मगर एक दो चीजें जो खराब हो गई, हम बार बार उसी को सोचते हैं। बाकी के जो 99 चीजें जो अच्छी है आपकी, वो ना सोचते हुए वो चीज को सोचते हैं जो आपके पास नहीं है। वाबी साबी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो चीज टूट गई उसके ऊपर मलाल ना करें, जो चीज टूट गई उसको कैसे बेहतर डेकोरेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो यू मेक श्योर दैट योर हेल्थ, योर प्रोफेशन, your career, your relationship, your money status, financial status, etc., has to be taken care of. So wabi sabi is another concept. Okay, sleeping patterns, etc., we have discussed in the last session. With this, I would like to end the session. Jazakallah khairan wa ahsan Mujahid bhai, thank you, excellent session. सुनकर सुन दो गए हम। बिल्कुल सर, ये तो हकीकत बात है। सो बराए मेहरबानी आप लोग सुने और इसको इम्प्लीमेंट करें आज ही से, थोड़ा ही, भले ही थोड़ा। यू डू नॉट हैव टू मेक द कंप्लीट। देखिए, जितनी सारी चीजें दुनिया में बनी एक ही दम में नहीं बनी, ठीक है। इफ यू सी द प्लेन विच राइट ब्रदर्स मेड, एंड टुडे इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। If you see the iPhone, the first version and today's version, it is absolutely different. हर वो चीज जो छोटे से शुरू हुई, होते 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 आगे बढ़ गई। तो आज भी आप है ना, तो थोड़े से शुरू करें, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते आगे और बढ़ जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज वी हैव टू स्टार्ट। वो न्यूटन का पहला लॉ है ना, कि दुनिया में जो भी चीज है वो इट इज ऑन द सेम, इट इज ऑन द सेम पेस। Okay, it goes on the same pace unless and until an external force act on it. So these sort of webinars will give you an external force, एक jerk लगता है, jump, jump it जैसे कहते हैं ना, वो लगता है, जिससे आप होशियार हो जाए कि भाई हाँ, यस, वी हैव टू डू समथिंग राइट नाउ, नॉट टुमारो। ओके, राइट नाउ। कुछ भी आप छोटे से शुरू करें, फिर आपका माइंड कॉन्शियस अनकॉन्शियसली बोलेगा कि यार जो काम शुरू करें ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। स्नोबॉल इफेक्ट होगा या डोमिनोस इफेक्ट, जो भी आप कहें, ठीक है, वो होगा। होते 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 जब आप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएंगे कि आप खुद बोलेंगे कि यस, व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज एब्सोल्युटली ग्रेट। विद द लास्ट कोड आई वुड से, रॉबिन शर्मा ने कहा कि बिगिनिंग इज वेरी हार्ड। कोई भी काम शुरू करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है विद दिस करंट वर्ल्ड सिनेरियो। मिडिल इज मेसी। जब बीच में जाएंगे तो आप जो है ना, नॉट MESSI मेसी, ओके। अब बीच में जब जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज देयर। आपको जॉब को देखना है, पर्सनल लाइफ को देखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर लॉट, मिडिल इज मेसी एंड द एंड इज गॉर्जियस। जब आप खत्म होता है वो बिल्कुल जबरदस्त होता है। द सेम थिंग इस्लाम इज ऑल्सो टीचर्स। स्टार्ट में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बिल्कुल थोड़े से किया। 13 साल मक्का जिंदगी, चंद लोग, चंद सहाबा, ठीक है। 10 साल मदनी जिंदगी, लाखों की तादाद, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। सो द स्टार्ट इज वेरी हार्ड, मिडिल इज वेरी मेसी। लुक एट द लाइफ ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मिडिल। ताइफ का वाकया, शेब अबी तालिब का वाकया, उससे पहले एक्सेट्रा, इट वाज वेरी मेसी। जिंदगी बहुत मुश्किल, तंग, परेशान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द एंड was absolutely a gorgeous. So the same thing will be going with you, inshallah. With this, I would like to end this session. We will see you next Thursday, 8:30 Indian Standard Time. Jazakallah khairan wa ahsanu jaza. If you have got any personal questions, please do reach out to me. The details has been given to you. उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।